साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। कबीरा धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। कबीर माटी के हम पूतरे, मानस राख्यो नाओ। चार दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग एआना, तै जीवन जग सच कर जाना। जो उपज्यो सो बिनस है, जो उपज्यो सो बिनस है। परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले। छाड़ सगल जंजाल, चलने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां दे। रहने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां दे। चलने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां दे। रहने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां दे। रहने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां दे। चलने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां। चलने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां दे। चलने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां दे। रहने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां दे। चलने सौखे नहीं हुंदे रहने सौखे नहीं हुंदे बिछोड़े मावां दे। बिछोड़े मावां दे बिछोड़े सजना दे। मावां दे मावां दे बिछोड़े मावां दे। बिछोड़े मावां दे बिछोड़े मावां दे। बिछोड़े सजना दे। बिछोड़े मावां दे बिछोड़े मावां दे। बिछोड़े मावां दे बिछोड़े सजना दे। बिछोड़े मावां दे मावां दे। बिछोड़े मापियां दे बिछोड़े मावां दे। बिछोड़े मावां दे बिछोड़े मापियां दे। बिछोड़े मावां दे बिछोड़े मापियां दे। बिछोड़े मावां दे बिछोड़े मापियां दे।
ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਚੱਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਚੱਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ। ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਚੱਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਚੱਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਤਕੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਲਾਭ ਕੌਰ, ਜਿਤਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੰਦੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਦੰਦੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਲਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਘਾਟਾ ਤੇ ਵਾਧਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਦਵੰਦ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਦਵੰਦ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਵੰਦ ਪਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪੌਸੀ ਰਾਤ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਗਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ,
सरसा ते परिवार विछोड़ा, चमकौर दी गढ़ी विच वड्डे लालां दीयां शहादतां ते दीन दुनिया दे मालक माछीवाड़े दे जंगलां नूं कल्ले तुरे जांदे ने। हत्थ उत्ते बाज नहीं, सीस उत्ते ताज नहीं, चरनां विच जोड़ा नहीं ते चढ़न वास्ते घोड़ा नहीं। ते सतगुर जी उचारण की करते जाते ने? जदों पातशाह आनंदपुर साहब किले दे विचों बाहर निकलते ना, इतिहास पढ़ के वेखियो, पातशाह जी दे सज्जे ते खब्बे नौजवान सूरबीर योधे घोड़ियां ते चढ़ के शास्त्रधारी योधे पातशाह दे सज्जे ते खब्बे होया करते, अगे ते पिछे होया करते। पर अज जिहड़ी हालत है वो ये है भी परिवार का मैंबर भी कोई नाल नहीं ते गुरमुखो गुरसिख भी कोई नाल नहीं। जिहड़े तीन सिंह पातशाह दे नाल निकले ने, वो तीन सिंह भी विछड़ गए हनेरे करन, अकले तुरे जाते ने दीन दुनिया दे मालक। ते साध संगत उचारण की करते जाते ने? आपां सिक्ख्या ये लैनी भी दुख ते सुख दे विच सतगुरां दी बाणी सानू ताकत बख्शिश करते ने। इत्थे डोल जांदा है, मनोबल कायम नहीं रहिंदा, फिर पातशाह अपने सिख दा मनोबल कायम कर दिंदे ने, रज़ा दे विच आ जांदा है। नाले माछीवाड़े दे जंगलां विचों दी तुरे जांदे ने ते नाले इउं उचारण कर रहे ने, सानू दस रहे ने भी गुरसिखो जिंदगी विच किड्डी भी मुश्किल, किड्डी भी विपता आ जावे ते तुसीं गुरु नूं मुख रख के इउं पढ़ना है। तेरा किया मीठा लागे, 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 तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदार्थ नानक मांग, हर नाम पदार्थ नानक मांग, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, 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 तेरा किया मीठा लागे। पर साध संगत ये जिहड़ा भाना है ना भी दुख भी मिठा करके मनना ते सुख नूं भी मिठा करके मनना, खुशी नूं भी उहदा भाना मिठा करके मनना ते गमी नूं भी भाना मिठा करके मनना, ये हर एक दे हिस्से नहीं आउंदा। एक साडे किसे मित्र ने गल सुनाई, कहंदे वो कीर्तन करदा सी इसे तरह, ते कीर्तन दे विच हुण आपां इहो ही आखदे आ भी भाना मन्नो जी, अकाल पुरख दे हुक्म विच आओ जी। एक हुंदा कहना ते सुनना, एक हुंदा मनना। कहना बड़ा सौखा है, सुनना बड़ा सौखा है, मनना बहुत औखा है। वो किते अचनचेत की होया, वो कीर्तन करन वाले गुरसिख दा जिहड़ा लड़का सी वो बहुत बीमार पै गया।
बहुत बीमार पै गया तो बड़े यतन किए उन्हें। आपां करदे ही जदों कोई शरीर नूं रोग लग जाता है, जिथे तक अपनी कोई पहुँच हुंदी है आपां उन्नी दौड़ भज करते हैं भी किसी तरह अपने परिवार के मैंबर नूं आपां बचा सकीए। भागां वालियां दे इलाज हो जाते ने ते गुरमुखो कईयां दी दौड़ भज फिर वो थां ही नहीं पैंदी, क्योंकि अकाल पुरख दे घरों खेड वरतनी हुंदी है। महाराज ने वो बचन दसे ने, वो क्यों नहीं थां पैंदी? ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ है ਜਿਹੜੀ ना, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ है, इस करके वो थां ही नहीं पैंदी। जिस की पुज्जै औद, जिस दी उम्र पूरी हो जावे भी तैनूं इन्ना ही समा मिलिया संसार ते, जिधर नूं मर्जी तुर जाओ गड्डियां लेके, दवाई नहीं कोई लगूगी फिर, क्योंकि उम्र पूरी हो गई ना अकाल पुरख दे घरों। ते सह कौन रखे ही, उन्होंने रखेगा कौन? उन्होंने कोई बचा नहीं सकता। वैदक अनक उपाव, वैद डॉक्टर अनेकां उपाय कर ले, सारे PGI दे डॉक्टर इकट्ठे हो जाण एक पेशेंट ते, उन्हां दा कहाँ लाओ भख ही, एक भी उन्हां दा कीता होया उद्यम उपराला थां पैण वाला नहीं, क्योंकि वो जिहदे दुआले खड़े ने ना, उहदे अकाल पुरख दे घरों सवास मुक चुके ने। ये खेडां ने। इस तरह वो कहंदा भी मैं बड़े उद्यम उपराले कीते ते कहंदा भी मेरा बेटा जिहड़ा ठीक ना होया। अखीर ते जाके डॉक्टर ने कह दिता भी इहदा समा नेड़े लग गया ते हुण इहदी सेवा कर लै, घरे ले जा। हुण गुरमुखो जदों डॉक्टर ये गल कह देण ना भी घरे ले जा, चलो जिहड़े बजुर्ग ने वड्डियां उमरां दे 80-90 सालां दे आपां कह दिंदे भी चलो जी उम्र हो गई है कोई गल नहीं सेवा कर लैंदे आ, पर जदों प्यो नूं डॉक्टर कह दे भी पुत्त नूं घरे ले जा, ਇਹਦੀ सेवा कर लै, उदों प्यो ते की बीतदी आपां समझदे आ। ते साध संगत वो कहंदा भी नाले तां मेरा पुत्त दिनों दिन मौत वाले पासे मंजी दे नाल लग गया। फिर कहंदा जदों मैं कीर्तन करदा हुंदा ना, उन्हां दिनां च भी जाना पैंदा सी, कबीलदारी है, रोग ते पैसे लग जांदे ने, बहुत कुछ हुंदा, घर भी लुट्टिया जांदा, बंदा भी नहीं बचदा, बहुत कुछ हुंदा। ते कहंदा मैं कीर्तन भी करना, कहंदा ओही गल मेरे मुखों फिर औखी निकलदी सी भी भाणा मन्निओ, कहंदा मैनूं पता भी पुੱਤ दा दुख की हुंदा है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों बीत जांदी है ना फिर बड़ा, हाँ इहदे दो पहलू ने, गुरमुख भाणे नूं मनदा है, आम संसार भाणा नहीं मन सकिया, आम संसार तो भाणा नहीं मन हुंदा। सो इस करके भाणा मनण वालियां दी अरदास है, आपां अरदास रोज नहीं आपां अरदास पढ़ते, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, चरखड़ियां ते चढ़े, जिउंदे देगां विच वाले गए, तन आरियां नाल चरवाए, कीमा कीमा कीते गए, बच्चियां दे हार टुकड़े करवा के गलां विच पवाए, सिੱਖੀ सिदक नहीं छड्डिया, मुखों सी नहीं उचारी। ये वो भाणा मनण वालियां दीयां गल्लां ने। अज भी हैगे संसार ते ऐसे अणगिणत ने। ते प्यारिओ उत्थे फिर उन्हें दस्या भी भाणा मनना बहुत औखा है, कहना बड़ा सौखा है, पर दूजा पहलू ये है भाणा मनण तो बिना होर हल भी कोई नहीं। बंदा रो सकता है, बैण पा सकता है, गुरमत दे विच बैण पाउणे मनाही है, बैण नहीं पाउणे चाहिए। हंझू आउणे अखां दे विचों रोना ये वाजिब गल है, क्योंकि ये जिहड़ा अपना शरीर है ये ऐटोमैटिकली दिल दे नाल अख दा संबंध है, दिल दे नाल अख दा संबंध है। अपनी अख नूं बचाउण वास्ते ना डॉक्टर लोग दसदे ने, अख दी बैक ते पानी दी झिल्ली है, एक अख नूं इहनूं शीशे नूं बचाउण वास्ते पानी दी झिल्ली है। ये जदों दिल नूं सੱਟ ਵੱਜਦੀ है, दिल रोंदा है, जदों दिल रोया ना उसे वेले वो अख दी जिहड़ी बैक ते झिल्ली हुंदी है पानी वाली वो फट जाती है अख नूं बचाउण वास्ते। दिल रोंदा नाल अख रोंदी है दिल दे, ते फिर वो पानी हंझू बन के अख नूं बचाउंदा। फिर वो हंझू निकलदे ने, ओनूं रोना नहीं आख्या महाराज ने। नहीं, ये तो शरीर दे नाल संबंधित चीज़ है। जदों दिल रोवेगा तो अख ने अपने आप रो पैना है। तो जे आपां आखांगे भी ये रोना मनाही है, ये भी नहीं रोना, नहीं इनू रोना आखे ही नहीं हैगा। रोना किनू आख्या? रोना आख्या बैण पाउणे, स्यापे करने, परमात्मा नूं अबा तबा बोलना, उहनूं रोना आख्या गुरमत विच। जे हुण असीं इस रोने नूं रोना मन्नांगे भी, मान लो अपने परिवार दा अज मां चढ़ाई कर गई, हुण पुत्त रोवेगा नहीं, धी रोवेगी नहीं। ते महाराज ने गुरु अमरदास साहब जी ने बाणी दे विच लिखिया होया, पुत्त भाई भतीजे रोवे
पुत रोई जाता, भतीजे रोई जाते ने, भाई रोई जाते ने, डैड बॉडी के कोल खड़े रोंदे क्यों नहीं? रोंदे ने। हाँ हुण जे इस रोने नूं आपां रोना मन लिया भी ये गुरमत दे विच ठीक नहीं है, तां फिर जदों शाम दे वेले डोली तुरदी है, डोली प्यो अपनी धी नूं जदों डोली विच बिठाउंदा है ते धी भज के जाके प्यो नूं चिंबड़ जांदी है, छाती नाल लग जांदी है। धी भी रो रही है, प्यो भी रो रहा है, तो वह रोने नूं की आखांगे? उत्थे कोई गमी है? वो तो खुशी का वेला है, वो तो विआह है। इस करके रोने नूं समझना अपन भी रोना किहनूं आखदे ने। हंझू नूं रोकना शरीर नूं अणगिणत रोग लाउणे। हंझू नहीं कदे रोकना चाहिए। कई बारी ना कई ऐसे गुरमुख सतसंगी हुंदे ने जिहड़े संगत विच बैठे उन्हां नूं बराग आ जांदा है। बराग तो कई जन्मां दी भगती तो बाद हंझू आउंदा है, उस तरह आउंदा नहीं। मन की मैल हंझूआं राही बाहर निकलदी है, ये गुरमत कहंदी है। तो कई सज्जण उस वेले वो बराग नूं रोक लेंदे ने भी मेरे कोल बैठा बंदा आखूगा लै ये रोई जांदा है, इहनूं किड्डा क बराग लग गया जां एक किड्डी क वड्डी गल है, ये रोई जांदा है। वो एक साध संगत दुनियावी जिहड़ा ना जिन्हों आपां कहने लोक लज्जिया, लोक लज्जिया के कारण हंझू रोक लेंदा। पर गुरबाणी कहती है, महाराज जी कहते ने, साइंस कहती है, मैडिकल कहते हंझू नूं रोकना शरीर नूं रोग लाउणा है। हंझू नहीं कदे रोकना चाहिए, आउण दिओ। सो आओ आपां विचार अगे तोरीए। कलगी वाले पातशाह कहते भाणे नूं मनना है बई तेरा कीया मीठा लागा हर नाम पदार्थ नानक मंगा है। उस वाहिगुरू की रजा दे विच सिख ने चलना है, उस वाहिगुरू की रजा दे विच रह के ही अपना जीवन गुजारना है। सतगुरां दी बाणी सानू दुख विच ते सुख विच, खुशी विच ते गमी विच जीवन जाच महाराज सानू बख्शिश करते हैं। ऐसा जीवन जांच बख्शिश करते हैं। किहड़ा जीवन हुण आपां उहदे ते विचार करिए। गल भाणे दी भी करांगे, गल मां दे प्यार दी भी करांगे, सारी विचार आउणी है इहदे विच। वेखो मनुख दे कोल तीन चीज़ां ने, किहड़ियां किहड़ियां? तीन। पहला गुरबाणी विचों सुनो, फिर उस तरह बाल जवानी और बिरध फुन, तीन अवस्था जान। बचपन, जवानी ते बुढ़ेपा, शरीर दियां तां हैगियां तीन अवस्था। पहला बच्चा सी, इनू लग्या भी शायद मैं सदा बच्चा रहांगा, पर बच्चा नहीं ये रहा, बड़ा हो गया, जवान हो गया। जदों जवान होया बड़े फिर इन्हें टॉनिक खाधे, बड़े बड़े विटामिन लैके इन्हें सोचा भी हुण सदा जवान ही रहांगे, हुण झुरड़ी नहीं पैण दिंदे। हुण दाढ़ी है जिहड़ी ना ये काली तो चिट्टी नहीं होण दिंदे, ते किते ना किते धौले आउण लगे। फिर इन्हें कलफ की वरतों की, कहंदा कोई गल नहीं जे एक दो आ गए फिर मैं थोड़ो इनू चिट्टी होण दिना। पर इहदे वो भी यतन असफल हो गए। हौली हौली फिर जदों ज्यादा चिट्टी होण लग गई, कहंदा हुण कित्थे कित्थे लावेंगा, हुण तां बिन साबुण है उजलिया। हुण तां साबण जिवें साबण ला के ना सारे चिट्टी झग हो जाती है, हुण तां कहंदे बिना साबण तो ही चिट्टा होया पिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये शरीर की प्रक्रिया, इहदे च क्यों असीं दखलअंदाजी करते हैं? बंदा असल दे विच, माफ करियो, बंदा असल दे विच बाहरों सोहना होण ते सारा जोर ला दिंदा है, अंदरों कोई बिरले सोहणे हुंदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज कहंदे तू अंदरों सोहना बन जा, आ चिट्टे कालियां च क्यों फस गया? इहदे च की रखिया पिया? इहदे च तां कुछ भी नहीं भोलिया। तू गुरु दी बाणी नाल जुड़, परमेश्वर दे नाम नाल जुड़, ओ सियाणप है, ओ सहापण है। मन मेरे गाहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागा ताता झोला। परमेश्वर दे नाम नूं भी तां ओला बना लै ना, ओ कदों जागेगा? साध संगत उथे भीड़ियां सुनी दियां गलियां, जिथों दी तेरी जिंद लंघनी। उथे भीड़ियां सुनी दियां गलियां, जिथों दी तेरी जिंद लंघनी। उथे भीड़ियां सुनी दियां गलियां, जिथों दी तेरी जिंद लंघनी। उथे भीड़ियां सुनी दियां गलियां, जिथों दी तेरी जिंद लंघनी। उथे भीड़ियां
सुनी दिया गलियां जितों दी तेरी जिंद लंघनी ओथे पीड़ियां सुनी दिया गलियां जितों दी तेरी जिंद लंघनी ओथे पीड़ियां सुनी दिया गलियां बई सुनी दिया जिथों दी तेरी जिंद लंघनी ओथे पीड़ियां सुनी दिया गलियां जिथों दी तेरी जिंद लंघनी ओथे पीड़ियां सुनी दिया गलियां जिथों दी तेरी जिंद लंघनी ओथे पीड़ियां सुनी दिया गलियां जिथों दी तेरी जिंद लंघनी ओथे पीड़ियां सुनी दिया गलियां जिथों दी तेरी जिंद लंघनी ओथे पीड़ियां सुनी दिया गलियां जिथों दी तेरी जिंद लंघनी जिथे आव घट गलियां भीड़ियां कहते ऐ संसार ते भी कई बारी ऐसे मोड़ आ जाते ने जिथों बंदे नूं निकलना मुश्किल हो जाता है। हुण वेखो उदाहरण के तौर पर किसी बंदे नूं कोई भैड़ी आदत पैगी उन्होंने पता तो लग ही जाता ना भी मैनूं ये आदत पै चुकी है वो उन्होंने छड्डनी चाहुंदा है पर मन दे पिछे लग गया हुण चाह के भी छड्ड नहीं सकता फस गया ना। फिर कहते जदों इहो जे मोड़ ते फस गया जिथे अब घट गलियां भीड़ियां तिथे हर हर नाम छड़ाए बंदिया उत्थे तैनूं हरी दे नाम ने छड़ाउणा है पूरे गुरु ने छड़ाउणा है। किन्नियां नूं छड़ाया देख लो अजामल फसिया सी कि नहीं फसिया सी दसो जगत प्रसिद्ध पापी सी अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा सिखा क्यों भजदा ऐसे गुरु तो दूर ऐसे गुरु का पल्ला फड़ बेड़ा है ये बेड़ा बीत जाना है ये फिर मुड़ के हथ नहीं आउंदा लंघ गया ना मुड़ के आमदा ये ठहरन जांच ना जानदा लंघ गया ना मुड़ के आमदा। सो इस करके साध संगत उत्थे परमेश्वर के नाम ने छड़ाउणा है ते बंदा बाहरी तौर ते सुंदर बनदा है। बचपन आया सोचा भी नहीं ये तो मैं बच्चा ही रहांगा पर जवान हो गया जवानी विच इहने सोचा भी हुण नहीं बस जवान ही रहांगे पर ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ बड़ी जल्दी चक्या गया जदों जल्दी झुरड़ियां पैण लग गईयां शरीर का बल मुक्कण लग गया बुढ़ेपे वाला दौर चल पिया ते गुरमुखो उत्थे फिर ये तीन अवस्था बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। जे कहंदे इन्हां विच हरि दा भजन नहीं कीता ना कहते फिर बिरथियां गईयां तेरियां बचपन भी एवं गवा लिया नच टप के जवानी खा पी के हंडा के लंघाती बुढ़ेपे दे विच बंदा हौंके भरदा है क्योंकि बंदे ने जिंदगी तो इस करके दौड़ भज की हुंदी है भी मैनूं प्यार मिलूगा परिवार का सत्कार मिलूगा पर ज्यों ज्यों बुढ़ेपा आउंदा जांदा है त्यों त्यों बंदा हर एक दे नक्कों बुल्लों उतरदा जांदा है। बिरले जे परिवारां नूं छड्ड दईए आ दंदीवाल परिवार ते होर तुहाडा नगर बड़ा चंगा है बिरले परिवारां नूं छड्ड दईए बाकी परिवारां दे विचों बजुर्गां नूं प्यार सत्कार नहीं मिलदा। फिर कई चिंतावां खड़ियां हो जांदियां ने मेरे परिवार का कुछ बनिया नहीं मेरे परिवार नूं आ ना हो जे ये ना हो जे फिर इस तरह बुढ़ेपा लंघदा है। सो साध संगत उत्थे फिर तीन चीज़ां बंदे नूं दित्तियां ने महाराज ने वो सुनो इहदे ते विचार चलेगी। तीन चीज़ां ने एक साडा जन्म एक जीवन ते एक हैगी मौत। वेखो हुण तीन चीज़ां दे विचों ध्यान नाल इहनूं बचन नूं सुनना है। भला हुंदा गुरु भला करदा है तुम करो भला हम भलो ना जाना तुम सदा सदा दयाला। जन्म है जिहड़ा वो साडे हथ विच नहीं है अपने हथ विच जन्म परमात्मा ने नहीं दिता सानू नहीं पता बच्चे नूं नहीं पता भी मेरी बनन वाली आउण वाली मां कौन है बच्चे नूं नहीं पता भी तेरा किहड़े पिंड विच जन्म होवेगा बच्चे नूं नहीं पता भी तेनों किन्नी जमीन दे किलड़े आउंदे ने बच्चे नूं नहीं पता भी तेरा जन्म छपरी वाले घर हो रहा है कि कोठी वाले घर हो रहा है। जे किते ये पता हुंदा तां शायद ही दुनिया का कोई बच्चा गरीबां दे घरे जमदा फिरता सब कहंदे मैं तां हवेलियां वालियां दे जाना है। ये वाहिगुरू दे हथ है जन्म।
जन्म जिथे वाहिगुरु ने सानू ठीक समझिया, संजोगां दे अनुसार, साडे पूर्वले कर्मां दे अनुसार जन्म मिलदा है, गुरबाणी दे अनुसार। जे कोई मेरे वर्गा नास्तिक कहंदा भी कोई नहीं हुंदे, ओहदी अपनी विचार है, गुरबाणी दी विचार नहीं। क्योंकि असीं गुरबाणी विचों वो हवाले दे सकते हैं। पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे, ये वेखो ये गुरबाणी का हवाला है, गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी का बचन है। कहते जदों पूर्वले कर्मां दा बीजा होया बीज प्रगट हुंदा है, भेटिओ पुरख रसक बैरागी, उस वेले सिख नूं बैरागी पुरख का मिलाप हुंदा है, चंगे गुरमुख का मिलाप हुंदा है। जदों पूर्वला अंकर बीज, कर्मां दा बीज पूर्वले जन्मां दा जदों प्रगट हुंदा है, वो तो पहला इहनूं सत्संग ही नहीं मिलता, जिन्ना मर्जी जोर ला ले नहीं मिलता। कोलों दी लंघ जूआ, सत्संग हो रहा है इउं कह के लंघ जाता भी ये तो सारे पखंडी ने। ये बड़ी भुल हुंदी है बंदे च, गुरमुखो सारे पखंडी नहीं हुंदे, सारे तरह के लोग ने। इत्थे चोर भी ने, इत्थे साध भी ने, इत्थे सच्चे भी ने, इत्थे झूठे भी ने। जे हुण मैनू बुखार है, मैनू प्रशादा कौड़ा लगता है, तो मैं इत्थे जाके आखां भी लंगर तो सारा ही कौड़ा है, भला ये मेरी किड्डी सियाणप वाली गल है। बुखार तो मैनू कल्ले नूं है, तुहानू तो स्वाद लग रहा है ना, तुहाडे वास्ते तो स्वाद है, हुण मेरे कल्ले दे आखे लंगर कौड़ा हो गया। इसे तरह कुछ इस तरह की बिरती के लोग होंदे ने, तो जी पखंड है जी, सब की है जी, ये तो धर्म ने दुनिया लुट ली। नहीं नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं। धर्म तो बगैर तो असीं वेखो हुण गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जे सीस दा शहादत दित्ती तो काहदे वास्ते दसो? धर्म की रख्या कीती है, हिंदू धर्म की रख्या कीती है। उन्हां दा धर्म खतरे विच सी, उन्हां दी पत खतरे विच सी, उन्हां दे जिहड़े हक सी वो खोहे जा रहे सी। ते इस करके जे धर्म ही है नहीं तो फिर अपनी वैल्यू की है। तो साध संगत महाराज जी ने बचन कीते ने, बोली है सच धर्म, सच बोलन वर्गा धर्म नहीं। तो धर्मी बन के ही ये सच बोल सकता, उस तो बिना फार्मैलिटियां जा करता बंदा भी मैं सच बोलदा, पर बोलदा बहुत घट है। तो फिर जन्म साडे हथ विच नहीं, मौत साडे हथ विच नहीं। मौत कदों कित्थे किवें आवेगी? जदों ये शरीर की मौत होनी है, उदों ये शरीर का हुलिया की होवेगा ये किसी नूं पता नहीं है। वो भागां वाले लोग हुंदे ने संसारी तौर ते, जिहड़े अपने बच्चों दे विच, अपने परिवार विच शरीर का परित्याग करते हैं, ते शरीर भी उन्हां दा सबूत हुंदा है। ते बहुत लोग ऐसे भी ने दुनिया ते गुरमुखो जिन्हां दे शरीर की पछाण नहीं आउंदी, गठड़ियां बन के घरे लियाउणे पैंदे ने। शरीर का एंड भी पता नहीं किवें दा हुंदा है। एक्सीडेंटां दे विच जिहड़ियां मौतां हुंदियां ने ना, ते बहुत घरां दीयां दास्तानां ने, गठड़ियां बन के घरे लिआंदे, खुरचणियां दे नाल सड़कां तो पट्टणे पैंदे ने। इहो जिहियां भी खेडां ने, शरीरां दे एंड इस तरह भी हुंदे ने। हाँ, हुण इह किसे नूं पता नहीं भी कदों कित्थे ते किवें मौत होनी है। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन लिखिया, महला तीजा, क्या जाना कि वह मरांगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। साहिब दी याद हिरदे विच होवे, शरीर दा एंड जिवें मर्जी होवे, कहंदे कोई खास गल नहीं, शरीर तां हुण भी मिट्टी है ते इहने फिर भी स्वाह दी मुट्ठी ओ बनना है। इहदा कोई बहुता ख्याल नहीं करना चाहिए मौत वेले, इहने तां फिर स्वाह दी मुट्ठी ओ बनना है, होर तां है तां कुछ भी नहीं। फिर कबीर माटी के हम पूतरे, मानस राख्यो नाओ, 4 दिवस के पहुने बड बड रुंधा ठाओ। बंदा तो एवं मान करी जाता है, 4 दिनों का प्राहुणा जग ते आया है, ते साध संगत बड़े बड़े दावे करता है, की कुछ बंदा आखी जाता है। महाराज कहते कबीर गर्व ना कीजिए, उच्चा देख आवास, कहते उच्चा आवास वेख के किसी भी तरह का उच्चे आवास का भाव होंदा, किसी अहुदे का माण करना, किसी जमीन जायदाद का माण करना, किसी पढ़ाई लिखाई का माण करना, सोहने रंग रूप का माण करना, सोने चांदी पैसे का माण करना, ये उच्चा आवास है। कहते जी क्यों ना माण करन, कहते तू याद रख आज काल भोए लेटना, महंगे महंगे बैडां ते पैण वाले बंदे अज जा कल, अज ते कल विच ही मौत हुंदी है। ते कहंदे महंगे बैडां तो उतार लेना। परिवार वाले ने कहंदे हुण साह रुक गए, साह चलते नहीं, उतार लो थल्ले, अर्थी तैयार होगी। ते कहंदे थल्ले उतार के की करनगे, शमशान घाट लै जाणगे। वेखो बंदा चलिया 4 जणियां दा कंन
चार जने मोढियां ते चुक के लैके जाणगे, शमशान घाट रख के तेरा संस्कार हो जाना ते ओहदे तो बाद फिर उपर जामै घास, कहंदे ओ सुआह दे उत्ते फिर घाह जम आउंदा है। ओ कोई दिनां दा पराउणा आया जग ते, बंदा दावे बन्ने मुद्दतां दे। कोई दिनां दा पराउणा आया दुनिया ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। कई दिनां दा पराउणा आया जग ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। कोई दिनां दा पराउणा आया जग ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। दिनां दा पराउणा आया जग ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। कोई दिनां दा पराउणा आया जग ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। कोई दिनां दा पराउणा आया जग ते, पराउणा आया दुनिया ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। कोई दिनां दा पराउणा आया, दावे बन्ने मुद्दतां दे। कोई दिनां दा पराउणा आया जग ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। ओ कोई दिनां दा पराउणा आया दुनिया ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। कोई दिनां दा पराउणा आया जग ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। कोई दिनां दा पराउणा आया जग ते, दावे बन्ने मुद्दतां दे। क्यों साध संगत 4 दिवस के पाहुने बड़ बड़ रुंदा ठाओ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਨਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਆ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। दास बेनती करता हुंदा भी सिखा गुरु की हजूरी च भी बैठ गया ते झोली च किणका कोई पा के नहीं लै गया, फिर स्वाद नहीं आया। दीन दुनिया के मालक गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो जे कुछ लैके ना गए, फिर इन्हां दी हजूरी च मत्था टेकण दा लाभ की होया, कदे ध्यान नाल सोचा करो। इत्थों कुछ लैके जाना है, क्योंकि वेला लंघदा जांदा है। कदे ख्याल करके वेखो, कदे 10 सालां दे सी, अज 50 दे होए बैठे आ, कदे 40 सालां दे सी, अज 80 दे होए बैठे, पता नहीं लगता भी कदों लंघ गई। औद घट है दिन सरैण आरे, मन गुरमिल काज सवारे। आ सिक्ख्या लईए, जीवन बंदे दे हथ विच है। ते इत्थे सतगुरां ने सानू आख्या भी चंगे कर्म करी बई, मंदे कर्म नहीं करने, माड़े कर्मां तो बचना है, चंगे कर्म कर। चंगे कर्मां दे विच की आ जांदा है, एक तां आपां गृहस्थी लोक, बाल बच्चों वाले आ, परिवारों वाले आ, गृहस्थ जीवन नूं महाराज ने प्रवान किया है। गृहस्थी की कमाई बड़ी नेक होंदी है। ते गृहस्थी नूं की आख्या भी सिक्ख्या की लैनी, कहंदे मौत आउण तो पहला जो भी काम करना है, मौत आउण तो पहला करना है। जदों मौत आई ते फिर तां पानी का चमचा भी तू अंदर नहीं लंघा सकेगा, वो भी कई बारी घोरड़ू दे विच ही रुक जाता है, गल दे विच ही रुक जाता है। बस कहंदे रुक गया बई पानी, कहंदे फिर बस दुहत्थड़े स्यापे, फिर तां कहंदे हाए गया, फिर नहीं पता लगता भी किधर नूं गया, कित्थों आया, कह गया, कह माहे समावै, पता नहीं कित्थों आया सी, किधर नूं चलिया गया, कित्थे जाके समा गया। सो इस करके जिहड़ा ये जीवन है, घाल खाए किश हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। बई गुरसिखा लोड़वंद की हैल्प करनी, लोड़वंद नूं कोई भी भावें गरीब है, भावें कोई मरीज है, भावें कोई किसी की धी का विआह है, उहदी मदद कर जथा योग। इत्थे नहीं आख्या भी तू किते लखां तो घट कर ही नहीं सकता, नहीं। समय ते कोई 10 रुपये किसी नूं सहायता कर दईए ना, लख वांगू कई बारी सहायता हो जाती है 10 की। बहुत तुहाडे च ऐसे गुरमुख सज्जण बैठे होणगे
ते साध संगत असी कि शहर गए हुए सी, एक दसन वास्ते, कोई वडियाई नहीं इस गल दी। एक बीबी ਉਹਦੇ ਨਾਲ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ, बस ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, क्योंकि ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਤੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ 300 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ 300 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਸ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਠ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਤੂੰ 250 ਲੈ ਲੈ, 50 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਛੱਡ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 300 ਹੈ, ਪੂਰਾ 300, ਮੈਂ 300 ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ 50 ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਾਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰ, ਆ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮੋੜ ਦਾਂਗਾ, ਸੌਦਾ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ, किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे, पर बदनसीबी ना दे। ते मेरे अंदर गुरमुखो सट वजी भी वेखो ये कोल 50 रुपये होंदे उन्होंने दे देने सी, पर शाहूकार भी एडा करड़ा, रख दे इत्थे 50 रुपये तेनों मोड़ देना, ते नहीं तो मैनू पूरा 300 दे। हुण उहदे कोल है नहीं। ते गुरमुखो सच्चे पातशाह ने कहंदे सिखा कोले खड़ा की वेखदा 50 रुपये दे। मैं शाहूकार नूं आखां, मैं गल सुन बई, सौदा नहीं तो बीबी तो कढ़ाउणा, आ लै 50 रुपये तेनों मैं दिना, कोई गल नहीं, ते तू सौदा दिता है ते 50 रुपये उन्होंने। वो बीबी ने पता की कहा, मैं जिहड़ी गल सुणाउण लग्या, वो बीबी साध संगत उम्र च मेरे नालों थोड़ी जी वड्डी सी। कहंदी वाह वे पुत, जिउंदा रह, तेरे बच्चे जिउण, रब तैनूं चढ़दी कला करे। हुण ये असीस दे बराबर 50 रुपये कुछ भी नहीं है। उन्हें अंदरों हिरदे चों आख्या, मेरा कहण तो भाव घाल खाए किश हथों दे, नानक रहा पछाणे से। कई बारी छोटी सेवा भी बहुत बड़ा मान रख जाती है, इस करके सानू करना चाहिए। तो हुण जीवन अपने हथ विच है। इतिहासक साखी लै ला थोड़ी जी नाल, होर समझ आ जाता है। गुरु नानक देव साहब जी दे कोल भाई भगीरथ सिख ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख ते साध संगत साखी तो बड़ी लंबी है, पर सतगुरां ने भाई मरदाना जियां दा कारज सी, लाहौर दे विच रहिंदा सी भाई मनसुख सिख। सिख नहीं सी अजे बनिया, कारोबारी सी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन सी, बहुत अमीर बंदा सी मनसुख। ते रब वाले पासे नहीं सी आया, टिचरां करया करदा, टिचरां। ये संसार दा सुभाअ है। गुरमुखो वेखो, इत्थों बड़े बड़े दुनिया दे राजे, बड़े बड़े वजीर एहलकार तुर गए संसार तो, अलविदा कह गए। ते आपां भी जिहड़े संसार विच बैठे रहना, आपां भी इत्थे सदा नहीं है, पर रहीए जे संसार विच तां रब दे प्यार विच ते रब दे डर विच रहीए। जिस मनुख दे अंदरों रब दा डर निकल गया, रब दा प्यार निकल गया, उहदा मनुखा जन्म धारिया कोई बहुता वधिया नहीं हुंदा, क्योंकि भगती तो हीणा हो जांदा बंदा। महाराज जी कहंदे भाई रे, भगतहीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेव ना किन्नी बिरथा जन्म गवाया। भगती तो हीणा बंदा कहंदे संसार ते कादे वास्ते आया, रब दा प्यार ते भय होना जरूरी है, पर मन सुख दे अंदर है नहीं सी। भाई भगीरथ जदों गया, इहदे नाल रब दीयां गल्लां कीतीयां, परमात्मा दीयां। आ जिहड़ा जीवन अपने हथ विच है, सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ये। आ वेला है वाहिगुरू दे मिलाप दा,
ऐ मेरे प्यारे मन प्यारे मित्र ते हुण कहंदे तू वाहिगुरू दे नाल अपनी सुरत नूं जोड़ना कर। जदों भाई भगीरथ ने गुरु नानक देव साहब की महिमा सुनाई ना जाके मनसुख सिख नूं, ते मनसुख कहंदा भी वेख गल सुन, मैं आ कारोबारी बंदा, मेरे कोले नहीं बेल हैगी कोई सत्संग करन दी जां कोई होर उरा परा, ये तू अपना ज्ञान अपने कोले साਂਭ के रख। पर जदों भाई भगीरथ ने हुण रब दा प्यारा ना जिहड़ा, कहंदे एक बारी कोई महापुरख दरिया के किनारे ठूहा जिन्हों बिच्छू कहने आपां, वो बिच्छू नूं महापुरख वो पानी विच डुब रहा सी ते महापुरख उहनूं बिच्छू नूं चुकदे ने, वो डंग मारदा ते डंग मारदा हथों डिग पैंदा, फिर पानी च डिग पैंदा, फिर चुकदे ने भी डुब ना जावे ते वो फिर डंग मारदा ते वो फिर हथ चों डिग पैंदा। कोल खड़े संगी कहंदे महाराज बाबा जी, कहंदे किन्ने डंग मारे तुहानूं बिच्छू ने, दर्द हो रहा है, जदों ये डंग ही मारदा ते फिर इहनूं छड्डो परे डुबण दिओ। महापुरखां दा जवाब वेखो किन्ना सोहणा, कहंदे भोलिओ जे एक बिच्छू अपना सुभाਅ नहीं छड्ड सकदा डंग मारना, ते कहंदे मैं अपना सुभाਅ क्यों छड्डां? कहंदे जी समझ नहीं आई। कहंदे बिच्छू दा सुभाਅ डंग मारना और रब दे प्यारां दा काम है, परोपकार करना, जन्म मरण दोहों मैं नाही जन परोपकारी आए, परोपकारी आए तेरे जन परोपकारी आए, परोपकारी आए तेरे जन परोपकारी आए, उपकारी आए तेरे जन परोपकारी आए, परोपकारी आए तेरे जन परोपकारी आए, परोपकारी आए तेरे जन परोपकारी आए, परोपकारी आए तेरे जन परोपकारी आए, ओ परोपकारी आए तेरे जन परोपकारी आए, 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 परोपकारी आए तेरे जन परोपकारी आए। कहंदे फिर मैं अपना सुभाਅ क्यों छड्डां, फरीदा बुरे दा भला कर, ये गुरमुख दा काम है। कई सज्जण की हुंदे ने, जे आपां किसी नूं आखणा अमृत छको जी, गुरु वाले बनो, बाणी पढ़िया करो, वो बहुत सारिਆਂ दा सुभाਅ ही ऐसा हुंदा है, वो कहंदे रख तू अपना ज्ञान साਂਭ के, असीं नहीं इधर आउणा, बहुत कुछ बोल जांदे ने। फिर जिहड़ा अणजाण गुरसिख हुंदा है वो कहंदा मैं नहीं हुण किसी नूं आखणा, मैनूं तां लोक पुट्ठा बोलदे ने। नहीं नहीं, वो उन्हां दा सुभाਅ है, अपना सुभाਅ है। गुरबाणी का उपदेश घर घर पहुँचाउणा अपनी ड्यूटी है। उपदेश दिंदे रहो, गुरु के हुक्म नूं दसदे रहो लोकां नूं, कोई मन्नना जां ना मन्नना वो अग्गों वाले ते डिपेंड हुंदा है। सो इस तरह साध संगत भगीर भाई भगीरथ नूं मनसुख कहंदा तू रख अपना ज्ञान साਂਭ के। रात रहा सी भाई भगीरथ मनसुख के घर लाहौर, ते फिर जदों रात नूं नितनेम बंदगी सिमरन गुरसिख दा जीवन वेख्या मनसुख ने ना, कहंदा तेरा गुरु कौन है? कहंदे धन गुरु नानक देव साहब, निरंकार स्वरूप रब्बी जोत। ते कहंदा फिर मैनू दर्शन करा गुरु नानक देव साहब दे। सिख दे जीवन तो प्रभावित हो गया मनसुख। मनसुख जदों गुरु की शरण विच आया, भाई भगीरथ नूं गुरु नानक देव साहब जी कहंदे भगीरथ मनसुख नूं नाल ही लै आया। बड़ा हैरान होया, ये कोई करामात नहीं, पातशाह ने प्यार देना सी। मनसुख बड़ा प्रभावित होया भी सतगुरु महाराज तो मैनू जानते भी ने, आपां नूं भी जानते ने। ये नहीं हैगा भी गुरु किसी नूं जानदा नहीं, क्योंकि आपां भेजे होए गुरु दे। अपनी प्रतिपालना कौन कर रहा है? माँ ने तो 2-4 साल दुध चंगाया आपां नूं छाती चों, ते प्रतिपालना कौन कर रहा है? जदों रात नूं सौंदे आ आपां, बनौटी मौत हुंदी आ सौना। मैडिकल नूं पुछो, साइंस नूं पुछो, जदों बंदा रात नूं सौंदा ना गूढ़ी नींद विच, घूक नींद जिन्हों आपां कहने, भावें जहाज लंघी जावे उत्तों दी ते बंदे नूं नहीं पता लगदा, ते ओह नींद दे विचों जिहड़ा जगाउंदा है उहनूं गुरु कहंदे ने।
वो परमेश्वर है, वो दोबारा फिर कह दिंदा भी चल बई उठ के अपना काम ते लग जा। ते भाई किन्नियां रातां लग गई जिंदगी दियां, दुनिया जदों तो साजी है इसे तरह ही सवा दिंदा ते इसे तरह ही जगा दिंदा, पर एक दिन आउंदा है जदों स्वासां दी डोर टुटदी है, फिर किसी का जगाया नहीं जागदा, फिर गुरु का हुक्म आ जाता है। ते भाई मनसुख पातशाह के चरणों ते नमस्कार करदा है, कहंदा सच्चे पातशाह मैनू अपना सिख बना लो। वेखियो कारोबारी बड़ा वड्डा है, बिजनेस की कोई कमी नहीं उहदे दी, बहुत अमीर बंदा है, पर जदों भाग जागे ना, पातशाह ने दस्सिया भी मनसुख मौत का कोई पता नहीं भी किहड़े वेले इन्हें अटैक कर देना है। भाई रे इयों सिर जानो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। मिरत हसै सिर उपरै पशुआ नहीं बुझै, बाद साध अहंकार मैं मरना नहीं सूझै। ते मनसुख चरना ते नमस्कार करके कहंदा सच्चे पातशाह मैनू सिख बनाओ अपना। गुरु नानक देव साहब जी फिर मनसुख नूं भाई भगीर थे ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख होए ने गुरु नानक देव साहब दे, बहुत वड्डियां कमाइयां वाले पातशाह की हजूरी विच रह के इन्हां ने सिੱਖੀ नूं कमाया, गुरु नानक देव साहब दे बचन नूं कमाया। हुक्म दे विच रहण वाले गुरसिख, रजा दे विच रहण वाले, भाणे विच रहण वाले गुरसिख सी ये। खुशी विच गमी विच एक रस जिंदगी, ते संसार दा सुभाअ कुछ होर है। संसार दा सुभाअ किवें है सुनो की कहंदा संसार। दुख लग्गिया ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लग्गिया ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लग्गिया ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लग्गिया ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लग्गिया ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लग्गिया ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लगे ते हाका मारे रब नूं, बई हाका मारे सुखां विच टिचरा करे। दुख लगे ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लगे ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लगे ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लगे ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लगे ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लगे ते हाका मारे रब नूं, सुखां विच टिचरा करे। दुख लगे ते हाका मारे रब नूं, बई सुखां विच टिचरा करे। देखो संसार की करदा है। महाराज जी कहंदे जदों तक गांव गरज हुंदी है उदों तां सहज पाठ भी सुख लैंदा है, अखंड पाठ साहब भी सुख लैंदा है, ते 125 रुपये की देग भी सुख लैंदा है, रमाला साहब भी सुख लैंदा है। पर वेखियो हुण की कहे महाराज जी कहते कबीर काम परे हर सिमरी है। काम का इत्थे अर्थ है गांव गरज, मुश्किल का वेला, औखे वेले। औखे वेले जिवें परमात्मा चित्त आउंदा ना, कबीर काम परे हर सिमरी है, ऐसा सिमरो नित। कहंदे जिहो जिहा तेरा मन जुड़िया हुंदा ना औखे वेले, गांव गरज वेले, कहंदे इस तरह नित्ती कर लिया कर, वो परमात्मा नूं बड़ा चंगा लगदा है। ते ऐसा सिमरो नित अमरापुर वासा करो, हर गया बहोरै बित। कहंदे गुरु दे चरनां विच सुरत दा निवास हो जांदा है जे उस तरह दे नाल आपां वाहिगुरू परमात्मा नूं नित चेते करिए, नित याद करिए। तां साध संगत सतगुरु महाराज जी कृपा करन।
भाई मनसुख जिहड़ा इहनूं ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई, पातशाह दियां रहमतां हो गईयां। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे मनसुख हुण तूं सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार कर बई, सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार। क्योंकि वह गुलाब का फुल कहदा जिहदे चों सोहनी सुगंधी महक जदों आई तो वह महक नूं लैके महक लैण वाला बंदा वह आनंद विच चलिया जावे, वह आखे वाह बई वाह गुलाब का फुल है, गेंदे का फुल है। गुरसिख का जीवन ऐसा, गुरसिख नूं हंस बनाया महाराज ने। नहीं तो कई पंछियों ने एग्जाम्पल दित्तियां ने, एक इल, एक कां ते एक बगला, ये तीन पंछी जिहड़े ने ना ये बड़े धोखेबाज ने ते इन्हां दा तिन्नां दा वखरा वखरा सुभाਅ है। हुण विशा उधर नूं नहीं जाण दा टाइम। भाई मनसुख तूं सिੱਖੀ दा प्रचार कर। सतवचन महाराज जिथे भी जावे नाल तां अपना वणज कर। वेखिओ वणज तो नहीं रोकिया महाराज ने। आपां नूं कई बार भुलेखा हुंदा है बई जी साडे असीं तां कारोबारी बंदे आ, साडे कोले कित्थे टाइम। महाराज कहंदे कोई गल नहीं, मौत ने टाइम कढ लेना, तूं ना कढ। ये चीज़ों के भुलेखे च ना पिया करो। दास ने भी कई बार बेनती की है भी ये मन का बहाना हुंदा, होर कुछ नहीं। की कहंदा बंदा बई जे असीं ट्रैक्टर वाहण वाले बंदे, असीं कबैनां चलाउण वाले बंदे, साडा बिजनस है जी, साडे कोले कित्थे टाइम है। वो प्यारे इन्हां गल्लां दे जवाब हैगे। 24 घंटे ने अपने कोले दिन ते दिने 12 घंटे कोई काम कर सकता है? पूरे 12 घंटे का कोई काम नहीं करता ना, ते ना ही कोई 12 घंटे सौ सकता है। इन्हां दे विचों 2-2 घंटे बचते ने। 8 घंटे सौना बहुत ज़्यादा है, 8 घंटे काम बहुत ज़्यादा है। तो फिर किन्ने बच गए पिछे? 8 घंटे बचते हैं। 8 चों 4 फेर छड्ड दिओ अपनी कबीलदारी वास्ते, बच्चों वास्ते, होर 4 घंटे फिर छड्ड दिओ ते 4 तां फिर भी बचते ने। उन्हां 4 नूं कित्थे खचत करी जाना भोलिया। ते नाले महाराज कहंदे बहाने ने मन दे, तुसीं इन्हां चीज़ां दे विच मन नूं ना अटकाओ। गुरु दी बाणी गाया करो, गुरु दी बाणी नाल जुड़ो। उवें ही जुड़ना है जिवें असीं अपने दूजे कारोबार नूं करदे आं, अपना काम समझ के। दुख वाली गल यह है भी असीं गुरबाणी पढ़ने नूं, नाम जपने नूं अपना काम ही नहीं समझिया, अपना कारज ही नहीं समझिया। क्योंकि महाराज दे बचन लिखे ने, बिचों गर्भ निकल आया खसम बसार, दुनी चित लाया। आ लिखिया पिया महाराज ने सारा कुछ। कहते दुनिया नाल इहो जिहा चित्त लाऊगा, मुड़ के गुटका साहब नहीं इन्हें चकना। फिर नहीं ये सत्संग च जांदा। दुनिया नाल चित्त लग गया ना, उधरों चित्त तोड़ लिया गुरु नालों ते आपां गुरु नाल चित्त जोड़ना है। ते दास तुहाडे सामने, तुसीं सारी संगत अद्धी तो ज़्यादा मैनूं जानन वाले हो। तुहानूं दस दियां भी जे ये बहाना लाओगे ना भी असीं खेती करते हैं, फिर खेती तां मैं आप भी खेती करदा, आ मेरा बेटा बैठा है। तो साध संगत जे तुसीं आखोगे बिजनस करदे हो, मैं वड्याई वास्ते नहीं दस रहा, तो फिर बिजनस तो साडा भी हैगा। बिजनस महाराज ने बहुत कृपा की हुई है, रजाया होया, तुहानूं भी रजाया सारिआं नूं। ते इस रज दे विच ना साध संगत गुरु दा पल्ला फड़िए, पिछे ना रुक जाइए, अगे नूं आइए, गुरु वाले पासे कदम पट्टीए। ये बहाने नहीं सानूं करने चाहिए भी जी साडे कोले कित्थे टाइम। टाइम बड़ा बंदे कोले। सो भाई मनसुख तू वणज भी कर, अपना व्यापार भी कर, ते नाल सिੱਖੀ दा प्रचार कर। मनसुख गुरु जी तो आशीर्वाद लैके श्रीलंका चलिया गया, संगला दीप। उत्थे दा राजा शिवनाभ तुसीं सुनिया होना कई बार। राजा शिवनाभ जिहड़ा है थोड़ा बहुता वहमां भरमां दे विच अटकिया होया सी। एकादशी वगैरह दा इहने वरत रखिया होया सी भी शहर दे विच किसी ने अग नहीं बालनी, ते अपना किसी ने रोटी नहीं पकाउणी, अग नहीं बालनी। ये तादक गल्लां एकादशी दा वरत है। भाई मनसुख जदों गया तो गुरु नानक देव साहब की सिੱਖਿਆ सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ। तो उत्थे दस्सिया सी भी मनसुख वहमां भरमां च नहीं पैना, शरीर का की पता कदों भांडा फुट जाए, कहाँ बसासा इस भांडे का इतना क लगा है ठनका। ये तो जैसे जल ते बुध बुधा, उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। ये तो जग की रचना इसे तरह की है। तो फिर भाई मनसुख तो जिहड़ा सी ना, वो तो गुरु का सिख है, उन्हें तो बचना नूं कमाया होया है। वो अपने साथियों नूं, अपने संगियां नूं कहण लग्या बई इउं करो, लकड़ां इकट्ठियां करो, अग उबालो ते भोजन पकाओ, गुरु का लंगर तैयार होना चाहिए। सतनाम वाहिगुरू दा जाप होया। शहर दियां संगतां ने वेख्या, लोकां ने वेख्या, कौन लोक ने ये वखरा जा कुछ कर रहे ने। ते साध संगत सतनाम वाहिगुरू कह के अरदासा करके लंगर छकिया, फिर अरदास होई। ते इस तरह फिर
सिमरन होया, राजे शिवनाभ दे कोल गल चली गई भी तेरे शहर दे विच कुछ ओपरे जे बंदे आए ने, उन्हां दी चाली कुछ इस तरह की है ते उन्होंने आ कीता, बुलाओ बई। ऐसे वेले भाई मनसुख नूं बुलाया गया। राजा शिवनाभ कहंदा कौन है भी तू, कित्थों आया है, तू ये की कर रहे हैं? मनसुख जी ने आख्या, कहंदे राजन मैं गुरु नानक देव साहब दा गरीबड़ा सिख हाँ, गुरु नानक देव साहब की बख्शिश है, आ मेरा बनज है, आ मेरा व्यापार है, मैं तेरे शहर विच आया, कुछ समा इत्थे ठहरना। राजे शिवनाभ का जवाब सी, कहंदे मनसुख तू मेरे शहर विच नहीं ठहर सकता। क्यों क्यों नहीं ठहर सकता? कहंदे तू अवज्ञा कीती है, बहुत बड़ी गलती कीती है। राजन मैं कोई गलती नहीं की, गुरु नानक देव साहब का उपदेश ही है नहीं सिख गलतियां करे, तो इस करके कहंदे तू कल अग मचाई है, तेनों पता नहीं सी भी एकादशी का वर्त है, ते तू भोजन तैयार किया है। भाई मनसुख कहंदा राजन गुरु नानक देव साहब इन्हां वहिमां भरमां कर्म कांडां दे विचों कढदे ने, एकादशी वगैरह सिख धर्म दे विच है नहीं, इस करके ये तू वहम दे विच है, भरम दे विच है। कहंदा मेरे नाल जवान लड़ाउंदा, फड़ो इहनूं चक के जेल च सिटो। ते गुरमुखो भाई मनसुख नूं इहने जेल दे विच बंद कर दिता। ते जदों भाई मनसुख नूं जेल विच बंद कीता ना, ते फिर उत्थे भाई मनसुख ने सिੱਖੀ नहीं छड्डी भी गुरु नानक देव साहब जी तुसीं तां आख्या सी करो बनज ते सिੱਖੀ कमाओ, सिੱਖੀ दा उपदेश आ वेख लो, सिੱਖੀ दा उपदेश मैनूं तां जेल च सिटता। नहीं नहीं, वो कहंदा सुख दुख तेरी आग्या प्यारे, सुख दुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलण हारी है तिथे चंगी चुप। ते कहंदे उत्थे तां फिर सिੱਖੀ नहीं छड्डी, वो रब दा प्यारा जेल दे विच भी रब दे गुण गाउंदा भाई मनसुख, जेल दे विच रब दे गुण गाउंदा। जिन्ने कैदी सी वो सारी भाई मनसुख तो प्रभावित हो गए, धन धन कहण लगे, धन गुरु नानक जपण लाते सारे। ते राजे शिवनाभ नूं जिहड़े जेलर सी ना, वो जाके दसदे ने, कहंदे राजन वो जिहड़ा बंदा तू जेल विच बंद कीता है ना, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ है नहीं, वो ਤਾਂ आनंद दे विच है, किसी महारस दे विच है। वो सारे कैदी धन गुरु नानक जपदे ने। ते गुरमुखो राजा शिवनाभ आया, मनसुख बंदगी दे विच बैठा है, नाल दे संगियां नूं जोड़िया होया है। इस बचन नूं बाणी ने इउं कहा, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे। भगत जी कहंदे जेड़े परमेश्वर दे प्यारे परमेश्वर नूं भागे, उन्हां दे जीवन दीयां कथावां निरालियां हुंदियां ने। भगतां की चाल निराली। ते की कहा, हर के सेवक जो हर भाए तिन की कथा निरारी रे, आवे ना जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। वो ना कितों आउंदे ने, ना कितों जांदे ने, ना वो कदे मरदे ने। आ हुण पिछले महीने आपां गुरु के लाला नूं याद कीता, करदे रहना चाहिदा, कदे नहीं भुलना चाहिदा। गुरु के लाला नूं नहीं भुलाउणा आपां ने, क्योंकि साध संगत तो साडे पुरखे ने, वो महान ने, हमेशा महान रहणगे।
ते भाई उत्थे फिर जदों आके वेख्या राजे शिवनाभ ने, कहंदा भी दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दिता, राजा शिवनाभ अंदर चलिया गया ते कहन लग्या सिखा भी जेल दे विच तां बड़ियां बड़ियां चीकां निकल जांदियां ने, मैं की वेखदा, मैं की सुन रहा, तेरे चेहरे दे उपर जिहड़ा रब्बी नूर है ते तैनूं कोई चिंता भी है नहीं ते तैनूं किसी तरह का कोई भय भी है नहीं, मैनूं इह दस इहदे विच राज की है। लो सुणिओ हुण बचन सुणिओ, जवाब की सी भाई मनसुख दा जवाब की सी। कहंदे शिवनाभ सानू गुरु नानक देव साहब जी ने साडी झोली ये बचन पाया भी सिखा जिहड़ा सवास तैनूं आ रहा है वह गॉड गिफ्ट है। कोई भी सवास किसी भी वेले अटक सकता, सवास अटक गया शरीर मिट्टी की ढेरी है, फिर कुछ भी है नहीं, फिर नहीं तो बोलिया जाना। आ माइंड है। हुण वेखो कईयां दी याददाश्त चली जाती है। हुण जिहदी याददाश्त चली गई वो कली शरीर वो बस तुरी फिरदी है देही, ते जदों याददाश्त चली गई तो कोले तो कुछ नहीं ना, फिर ना उन्होंने ये पता भी की हो रहा है, की करना है, की नहीं, वो तो गई याददाश्त, फिर वो कली बॉडी रह गई, हुण कर कुछ नहीं सकता। वो जिहड़ा वेला है ना उन्होंने संभालण दी गल, कहंदे मेरे पातशाह ने साडी झोली ये बचन पाए ने, कहंदे बाकी काम बाद विच करना है, पहला पढ़ना है हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना, नानक विनवै तिसे सरेवो जाके जी प्राणा। बहुत लोग ने जिहड़े ब्याहां दे विच ना नचदे, स्टेजां ते नचदे, इउं नच रहे ने, आपां वेखदे आ ना, अपनी जेबां च मोबाइल ने, सोशल मीडिया ते वेखदे आ, इउं नचदे नौजवान डंडियां वर्गे चोबर ते गुरमुख धड़म करके डिगदे ने, सारे स्टेज वाले उत्ते ढेरी हो जांदे ने भी हाय हाय। स्पीच दिंदे लोग इउं चुप करके, बाणी पढ़ते गुरसिख इउं साध संगत उत्थे ही लुटक गए। ये शरीर का पता है कोई? वो बंदिया क्यों मान करदा, क्यों मान करदा, तेरे हथ तो है ही नहीं कुछ। मारै राखै एको आप मानुख कै किश नाही हाथ, की है तेरे हथ? जदों सवासां दी डोरी टुटनी है रोक के विखागा, ते इउं धड़म दे के डिग पैंदे ने। कुर्सियां ते बैठे हसदे नौजवान सौदा देई जांदे ने, काउंटर ते बैठे ते हस रहे ने, हसदे हसदी चुप कर गए। लै बाबा बोलते ते कहाँ गए, देही के संग रहते। ते इस तरह इहदा पता नहीं कोई है। कहंदे गुरु नानक देव साहब जी ने यह दस्सिया मन सुख मौत किसी भी वेले आ सकती है, जिंदगी का सच्चा आनंद लेना है, एवं चिंता विच नहीं डुबना, वाधू दियां फिक्रां नहीं करनियां, एवं नहीं भार पाई रखना शरीर ते वाधू दा आ ना हो जे वो ना हो जे, गलत करना नहीं, गलत दा साथ नहीं देना, ते कदे एवं चिंता दे विच नहीं डुबना, जिंदगी दा आनंद लो। शिवनाभ असी तां गुरु नानक देव साहब महाराज दा बख्शा आनंद, जिंदगी दा आनंद लेना होए, भावें जेल विच होवे भावें घर विच होवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। शिवनाभ कमाल, कहना सिखा, कहना भी बाहर कढ़ दो, जेल तो बाहर कढ़ दो सिख नूं, क्योंकि प्रभावित हो गया ना, बचना दे विच कल है, गुरु दी बाणी प्रभावित करदी है सिख नूं। ते भाई कहना जेल तो बाहर कढ़ दो, बाहर कढ़ दिता, चरना ते मत्था टेकता राजे शिवनाभ ने। कहना सिखा जदों तेरे बचना दे विच एडी कल है, फिर हुण इउं कर, मैनू तेरे गुरु दे दर्शन करा दे, देरी ना ला, मैनू छेती तेरे गुरु दे दर्शन करा दे, मैनू थो पता दस गुरु दा, मैं इसे वेले चलिया जाना। ते भाई मनसुख कमाइयां वाला सी, कहना राजना काला ना पै, कोई गल नहीं काला ना पै, तैनू एड्रैस की लोड़ नहीं है, तैनू उहदा थो पता उन्हां दा पुछण दी लोड़ नहीं है। मेरे गुरु ने धन गुरु नानक निरंकार स्वरूप, ते कहंदे उन्हां नूं जिथे भी याद करिए प्यार नाल, आ नोट करियो, जिथे भी प्यार नाल याद करिए वो चल के आ जाते ने। ते अज दी जे आपां गल करांगे ना भी अज तां गुरु जी शरीर करके है नहीं, अज जोत स्वरूप ने, अज शब्द गुरु ने। सिखा तू अज याद कर लै, नोट करियो जिन्नी संगत बैठे आ, ऐसे भी कई बैठे होणगे जिन्हां दे घरे 25-25 साल हो गए गुरु साहब गए नहीं, क्यों? क्योंकि याद नहीं किया गुरु नूं। अज इत्थे याद करियो, एड्रैस मेरा ले लियो, ते गुरमुखो जे गुरु जी ना घर गए ना, मैनूं लांभा दे दिओ भी बाबा जी असीं याद कीता सी, गुरु जी साडे घर नहीं गए। गुरु ग्रंथ साहब उहदे घर जांदे नहीं जिहड़ा गुरु नूं याद नहीं करदा, जिहड़ा याद करदा गुरु नूं उहदे घर जांदे ने। ते जिहदे घर गए महाराज
ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਆ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾਇਆ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਐਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਬੰਨ ਲਏ। ਚਰਖੜੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਮਾਰਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀ ਘੁਮਾਈ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੀਬਰ ਬਰਾਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਭਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, 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 ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਭਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਖ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਲਿਖ ਪਿਆਰੇ 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 ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਗ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਬਾਗ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਝਲਕਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ, ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ। ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
संगत का वड्डा इकट्ठ हो गया। धन गुरु नानक देव साहब जी राजे शिवनाभ नूं कहंदे, शिवनाभ तू ब्रह्म ज्ञान की दात, कहंदा हाँ महाराज कृपा करो मैनू अपना सिख बनाओ ते मैनू ब्रह्म ज्ञान की दात दिओ। धन गुरु नानक देव साहब जी कहन लगे, शिवनाभ जिंदगी का जिहड़ा अमोलक समा सी वो तो अजाई गवा बैठा, जिहड़ा अमोलक समा सी वो अजाई गवा बैठा, क्योंकि मनुख अपनी जिंदगी विच दो वड्डियां गलतियां करता है। ये तन दी ते मन की पूर्ति वास्ते, तृप्ति वास्ते, बई मैं तृप्त हो जावां, मेरा तन तृप्त हो जाए, मेरा मन तृप्त हो जाए। खास करके इहदे विच जिहड़े वड्डे लोग आ जाते हैं, जिवें राजे लोग, वजीर लोग, अहुदेदार लोग, वो ज़्यादा हुंदी है परसेंटेज उन्हां दी। वो तन की पूर्ति वास्ते, मन की पूर्ति वास्ते, हुण आपां नूं पता भी मन की मंगदा है, आपां नूं पता भी मन की मंगदा है। उत्थे फिर ये गलत पासे स्टैप चकदा है, जिहदे विच विषे विकारां विच डिग पैंदा, बुरीआं आदतां ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 50 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਕਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦੂੰ ਫੱਟੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਆਪ ਫੜਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਮੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। क्यों? उम्र लंघ गई, विषय विकारां ने चूंड लिया, खाली करता, बिल्कुल निचोड़ता नींबू वांगू। ते फिर राजे शिवनाभ नूं जदों आख्या, राजना हुण तेरा शरीर है जिहड़ा जदों जिवें जवानी विच सी उवें ही है, तेरा शरीर हुण उवें ही है जिवें जवानी विच सी। अखां चों हंझू आ गए राजे शिवनाभ दे। क्यों भाई? महाराज जी कहंदे, बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँचियो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजै भगवान। बुढ़ेपा आ गया, सुझदा अजे भी कुछ नहीं। ते फिर जदों अखां चों हंझू आए ना, गुरु नानक देव साहब जी कहंदे, वेख शिवनाभ, ये गलती किसी दी नहीं है, तू ही तां कई राणियां लियांदियां, तू ही तां पुठे पासे अपने जीवन नूं बर्बाद कीता। ये एक शिवनाभ दी गल नहीं, ये अपनी सारियां दी गल हो रही है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਥਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਝੂਰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਹਰਾ ਹੀ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਰੇੜੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਾ ਆ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। हत्थां विचों लाल गवा के शिवनाभ धरती चुंगला मार रहा है, वो मिट्टी ना फरोल जोगिया। हत्थां विचों लाल मिट्टी ना फरोल जोगिया, चारे हत्थां विचों लाल गवा के मिट्टी ना फरोल जोगिया, चारे हत्थां विचों लाल गवा के मिट्टी ना फरोल जोगिया, चारे हत्थां विचों लाल गवा के मिट्टी ना फरोल जोगिया, चारे हत्थां विचों लाल गवा के मिट्टी ना फरोल जोगिया। नहीं लपने भाई लाल गुआचे मिट्टी ना फरोल जोगिया, नहीं लपने भाई लाल गुआचे मिट्टी ना फरोल जोगिया,
ਲੱਭਣੇ ਬਈ ਲਾਲ ਗਵਾਚ ਪਰੋਣ ਜੋਗੀਆ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੇ ਬਈ ਲਾਲ ਗਵਾਚ ਪਰੋਣ ਜੋਗੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਜਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੁਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੰਦੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਲਾਭ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਖੂਬੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਪਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਰਲਾਭ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਤੇ 5ਵੀਂ ਧੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, 5 ਧੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਅੱਜ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਧੀਆਂ, 5ਵੀਂ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਧੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਵਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪੂ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੰਦੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਓ। ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ।
बाजो बेड़ा सुना लगदा है वो तेरे दा तेरे बाजो जीना लगदा है मां वो तेरे दा तेरे बाजो जीना लगदा है जी रंग ले सजना बाजो बेड़ा सुनना लगदा है धी तेरी दा तेरे बाजो चितना लगदा मां धी तेरी दा तेरे बाजो चितना लगदा है रंग ले सजना जो बेड़ा सुना लगदा है धी तेरी दा तेरे बाजो चितना लगदा है मां धी तेरी दा तेरे बाजो चितना लगदा है रंग ले सजना बाजो बेड़ा सुना लगदा है धी तेरी दा तेरे बाजो चितना लगदा है मां धी तेरी दा तेरे बाजो चितना लगदा है घाटा तो कदे पूरा होना नहीं परिवार नूं पर गुरमुखो एक गल दा माण जरूर है भी इहो जिहियां मावां जग ते होण ना तां फिर उन्हां परिवारां नूं भी कोई घाटा नहीं रहिंदा। अज परिवार नूं इह मुकाम ते पहुंचाउण वाली मां गुरलाभ कौर है ते बापू शेर सिंह होरी ने साध संगत अज जो भी माण मिलिया क्योंकि आपां जिहड़े जिहड़े अहुदियां दे मालक बैठे आ ना ਉਹਦੀ बैकग्राउंड ते मां प्यो दी असीस ते अरदास है। जिथे मां प्यो दी असीस ते अरदास है उत्थे होर कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। ते साध संगत मां नूं बुलाओ भावें ना बुलाओ प्यो नूं बुलाओ भावें ना बुलाओ पर वो अपनी औलाद वास्ते अरदास करते ही रहिंदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू क्योंकि प्यो बन के पता लग जाता है ना मां बन के पता लग जाता है। मां प्यो बने बगैर पता ही नहीं लगता बच्चे उही आखी जाणगे तुसीं साडे वास्ते की करदे हो। हुण अरदास ते असीस किते दिसण विच आउंदी है वो तो अंदरों ही चल रही है ना। हुण ओनू किवें बच्चा वो तो जदों आप प्यो बनूगा उदों पता लगू भी 24 घंटे चलती रहिंदी है। रब्बा मेरी औलाद नूं तरक्कियां मेरी औलाद नूं चंगी जॉब मेरी औलाद दा चंगा बिजनस बना दे हर वेले चलती रहिंदी है। फिर उन्हां दा देण कित्थे दित्ता जाऊ भला। सो मापियां नूं संभालो बजुर्गां नूं संभालो। साध संगत इउं कहंदे ने कहंदे जदों तां बंदा जिउंदा है जदों बंदा जिउंदा है उदों तां परे मूँह करके लंघ जांदा रिश्तेदार दोस्त मित्र जदों ते चिट्टी लोई पैगी फिर भावें दूर दा होवे कदे देखिया भी ना होवे फिर लोई परे करके ओ बाई एक बारी तां बोल पै। हुण पता भी मरिया बोलदा नहीं जिउंदे नूं बुलाया नहीं। देखो जिउंदे नूं दुੱਧ दा गिलास नहीं दिंदा मरे दे देसी घिओ पाउंदा मूँह च। हुण पता नहीं आपां नूं भी मरिया देसी घिओ खांदा नहीं मरिया देसी घिओ कित्थे खांदा ते जिउंदे नूं देसी घिओ खवाया नहीं। ये गल्लां ध्यान मंगदे ने। बाबा जी ने बाणी च लिखिया जीवत पितर ना मानै कोऊ मूए श्राद्ध कराही। जिउंदे बजुर्गां ते ध्यान नहीं लोक दिंदे मरियां तो श्राद्ध कराउंदे ने। मरियां नूं कहंदे पितर भी बपरे कहो क्यों पावे कौआ कुकर खाही। कहंदे पितरां तक की पहुंचदा तो तुसीं मड़ी ते पा के आओ ते कां होरी उत्थे बैठे हुंदे ने कुत्ते बैठे हुंदे ने वो खा जांदे ने उन्हां तक की पहुंचदा। सो जदों जिउंदे ने ना उदों जफ्फी पाओ मां नूं। मैं ये बेनती करदा हुन्ना जदों ना आपां छोटे हुंदे आ उदों मां प्यो चुक के सानूं जफ्फियां पाउंदे ने। जदों मां प्यो बजुर्ग हो जांदे ने ना बजुर्ग उदों उन्हां दे अंदर एक भावना हुंदी है भी किते मेरा पुੱਤ जदों दफ्तरों आवे खेतों आवे दुकान तो शहरों बाजारों आवे भी एक बारी किते मैनूं तुरया जांदा बुक्कल च ले ले। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू एक बारी बुक्कल च ले ले ते फिर गुरमुखो उत्थे दुੱਧ ते घिओ खुराक नहीं पहुंचदा जिथे पुੱਤ दी जफ्फी पहुंचदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू पर साडे कोले इन्ना टाइम ही नहीं पता नहीं किहो जिहे बिजनस बन गए ना गुरु वास्ते टाइम कढदा ना मां प्यो वास्ते टाइम कढदा। दोनों चीज़ां ने नोट कर लियो। लोक ते परलोक सवारने ने गुरु ने। जे किते गुरु की सिक्ख्या ले जे गुरु लोक ते परलोक सवारदा है। जे मां प्यो की टीचर उस्ताद बॉस की सिक्ख्या ले जे इहदा लोक सवार दिंदे ने। सिक्ख्या लैनी आपां ने सिੱਖਣ वास्ते आपां आए हैं। सो आओ प्यारिओ जिन्हां दे कोल ने ओ मापे वो बड़े भागां वाले ने। क्यों क्योंकि जदों इत्थों आपां घर जावांगे जांदे सार कहना मां मैनूं भुख लगी है रोटी दे दे प्रशादा दे दे। बापू अज अपना फलाना काम अज मेरा फलाना दोस्त मैं उत्थे जाना मैनूं इन्ने क पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ है। पर जिन्हां दे तुर गए वो किहनूं मां आखण किहनूं बापू आखण जिन्हां दे तुर गए।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਰਗਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵਰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਸ ਇਉਂ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੜਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, 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 ਮੁੜ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ। ਓ ਮੋੜ ਮੋੜ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਛੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ, ਮੁੜ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਛੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਛੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਦੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਤਾਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਖਜੀਤ